Hello students, this is the second video lecture of chapter 13 Motion and Time, class 7th Science NCERT. In this video lecture, we are going to discuss about what is motion, what do you understand by reference point, what is speed, and another set of types of motion. If you recall, in the previous video lecture, we have discussed about types of motion. There were basically three types of motion: rectilinear, linear, translatory or straight line motion. These are all one thing, that is straight line motion. Then we discussed about circular or rotational motion, and next periodic or oscillatory motion. While understanding periodic motion, we also peeped into simple pendulum, the components of simple pendulum, that is the bob and the thread. We discussed about what do we understand by one oscillation and what do you understand by time period of that particular simple pendulum. In this video lecture, we would be talking about another set of type of motion, that is uniform motion and non-uniform motion. Before going directly into this, let us first discuss about motion. Continuously we are saying types of motion, types of motion. Let us understand what is motion, or when an object is said to be in motion, है ना? So first question is, when an object is said to be in motion. तुम कब कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? हम कैसी बातें कर रहे हो? चलता हुआ दिखेगा तो वो चल रहा है, दौड़ता हुआ दिखेगा तो वो दौड़ रहा है, मतलब वो मोशन में है. कहने का मतलब है, if you want to scientifically define, so you would be saying, or not scientifically exactly, a layman language, using layman language you can define motion. But when I say motion, if position of an object changes, object की position change हो रही है with time, with respect to a fixed point, the object is said to be in motion. Suppose person is standing at point A and it reaches to point B, तो उसको कुछ तो समय लगा होगा. Let's suppose 1 minute. So it require 1 minute, or if not he or she, जो भी, that particular he or she requires some time to move from this point to this point. That motion we are observing through time. हम टाइम देख रहे हैं कि भाई इसको इधर से इधर तक जाने में कितना टाइम लगा, पर हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं. अब दैट फिक्स्ड पॉइंट कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट A and B. In your normal life you cannot say A and B. You say area wise. कि अभी मैं वडोदरा में थी, आफ्टर कवरिंग 110 किलोमीटर आई रीच टू अहमदाबाद. ओके, सो डिस्टेंस तुमने बताया कि मैंने इतना कवर किया डिस्टेंस इन अबाउट 1.5 hour or maximum 2 hours. Let's say 2 hours. So that car, okay, started its journey from Vadodara to Ahmedabad, covering a distance of 110 kilometer in approximately 2 hours. Okay, so I have mentioned distance, mentioned time, and the position of car is changed after covering particular distance in particular time.
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कवरिंग सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज। हमें कैसे पता चला? सो वी हैव ऑब्जर्व दैट प्लेस, कि भाई पहले ये यहाँ पे था, आफ्टर 2 hours द दैट पर्टिकुलर कार इज हियर, पोजिशन इज बीइंग चेंज्ड, you are observing the area. Now that fixed point is referred as reference point or you can say origin. यहाँ पे हमने origin देखा, origin मतलब starting point. भाई start कहाँ से किया? वडोदरा से। मैंने देखा वडोदरा से start किया, 2 घंटे बाद देखा यहाँ पे कोई नहीं है, वो कार जो थी वो अब कहाँ आ गई है? अहमदाबाद। So you are taking the help of reference point to determine the position of an object, कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई मुझे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, कि भाई वो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यहाँ था, दैट इज व्हाट रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस the object if it changes the position, उसका position change हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह with time, टाइम के साथ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर मान लो अभी मैं यहाँ से यहाँ भी जाती हूँ तो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिली सेकेंड्स मुझे लगते हैं, मतलब कुछ तो टाइम चाहिए मुझे पोजीशन चेंज करने के लिए। पोजीशन चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, कि वो पॉइंट देखो कि यहाँ से मैं यहाँ, मतलब इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया, कैसे? तो मेरे को ये पॉइंट पता होना चाहिए ना कहाँ से मैंने शुरू किया। आई शुड बी अवेयर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट स्टार्टिंग पॉइंट वुड हेल्प मी टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स। फर्स्ट, कि मोशन क्या है। अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है या determine करना है whether that object is in motion or not, then the object must be changing its position with time with respect to a fixed point. वो point के according, वो समय के according अपना position change कर रहा है, then and then only I can say that the particular object is in motion. Okay, the fixed point, ठीक है, with respect to which the position is changing, that is referred as reference point or you can say origin. Okay, so that reference point or origin is a starting point, and it is used to describe the position of an object. Okay, now we talk about speed. So speed is the distance covered by an object in a unit time. Unit time मतलब क्या? 1 second, 1 minute, 1 hour. Unit मतलब 1. अब टाइम के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। टाइम के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है सेकेंड, एक हो सकता है मिनट्स, hours. Okay, so we are aware of these things. Now 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. कि अगर ये कार यहां से यहां गई, इतना डिस्टेंस कवर किया इतना टाइम में, देन दैट इज स्पीड. Speed is distance divided by time. तो distance का यूनिट क्या होता है? Suppose if we are considering distance in kilometer and time in hours, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ऐसे, ज्यादातर किलोमीटर पर आवर. Now, kilometer per hour is the unit of speed, जो हम ज्यादातर व्हीकल्स में देखते हैं. ठीक है, अब व्हीकल्स में तुम्हें 2 डिवाइसेस दिखते होंगे. एक
जो 0 से स्टार्ट होता है, 20, 30, 40, है ना, वो स्पीड बताता है. दैट स्पीड वाला डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर, इज नोन एज स्पीडोमीटर. एंड ऐसा कुछ होगा जिसमें कुछ तो भी नंबर लिखे होंगे. ये नंबर हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया. सो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज ओडोमीटर. एंड स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, कितनी स्पीड से वो पर्टिकुलर व्हीकल मूव कर रहा है या कर रही है, देन दैट इज स्पीडोमीटर. एंड कितना डिस्टेंस कवर किया उस पर्टिकुलर व्हीकल ने, दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर. These are the two devices. Apart from this, these two devices are found in your four-wheeler और two-wheeler. ठीक है, vehicles में सब में दिखता है. Now, when I talk about speed, so that is distance upon time. Its unit is kilometer per hour. You can also write कि अगर distance मीटर में दिया है, time seconds में दिया है, मीटर पर सेकेंड, या तुम किलोमीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर किया, 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर किया. सो दीज आर द यूनिट्स, बट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ when I talk about average speed is total distance covered by total time taken. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिस्टेंस बाय टाइम ही है, डिस्टेंस बाय टाइम ही है, तो डिफरेंस क्या है, यहां मैंने लगा दिया टोटल. टोटल मतलब क्या कि स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट मतलब सेम तो नहीं रहेगी. मान लो जब आप वडोदरा से निकले अहमदाबाद के लिए, तुम लोग ऐसे जा रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना जो अगर तुमने 50 की स्पीड से शुरू किया तो 50 पे ही मूव कर रही है, एक ही स्पीड पे नहीं चलेगा. ओके, नाउ दैट would be that vehicle would be changing its speed in different intervals of time. That means वडोदरा से शुरू किया, पहले 40, फिर 50, फिर 60, हाईवे आया 80, है ना. दैट मीन्स उसने कहां से शुरू किया, 40 से शुरू किया था, 80 पे पहुंचा. 80 क्या, 80 किलोमीटर पर आवर. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्पीड, है ना. सो इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्पीड, तो वो क्या होगा, 80 किलोमीटर पर आवर जब वो हाईवे पे पहुंचे, स्पीड मेंटेन अच्छी खासी होती है. अब उसके बाद जब वो अहमदाबाद की सिटी में पहुंचा, स्पीड फिर से डिक्रीज, 60, 50, 40, फिर 50, फिर 40. क्यों, ट्रैफिक नड़ रहा है, कभी स्पीड बढ़ेगी कभी स्पीड घटेगी. तो क्या तुम कह सकते हो कि स्पीड सेम ही थी वडोदरा से अहमदाबाद तक, 40 की स्पीड में ही चल रहा था या 60 की स्पीड में ही चल रहा था, नहीं, है ना, वो चेंज होती जा रही है. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे उसका स्पीड बताना है कि भाई वडोदरा से अहमदाबाद तक उसका स्पीड क्या था, तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड. कि भाई उसका एवरेज स्पीड क्या था, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. भाई इतना डिस्टेंस था, इतना टाइम उसको लगा, तो दैट इज एवरेज स्पीड. लेकिन अगर मैं बोलूं कि वडोदरा से अहमदाबाद तक वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहा था, वो चेंज नहीं, बस 40 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड रख रहा था, देन दैट इज एक्चुअल स्पीड. ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस है. ठीक है, तो मान लो कि उसने अगर ये जो है ये वडोदरा, ये अहमदाबाद, ठीक है, बीच में अगर मान लो आनंद आता है, तो वो अगर कार ने वडोदरा से आनंद तक
60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन रखा था। आनंद से अहमदाबाद उसने 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन रखा था। अब मैं बोलूंगी कि इसका तुम क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 60 प्लस 80 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2। अगर तुम देखो तो दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कभी सुना है ऐसा? मीन जिसे बोलते हैं मीन इज सम ऑफ observations upon total number of observations। ऐसा कुछ सुना? वही मैंने एवरेज स्पीड निकाला तो 80 प्लस 60 कितना होगा, 8 प्लस 6 140, मतलब 80 प्लस 60 क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2, तो 70 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड थी। हालांकि जब वो कार चला रहा था वडोदरा से अहमदाबाद, तब उसने कभी भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली थी क्या? नहीं। मतलब क्या, ये इसकी एवरेज स्पीड थी। इट्स मीन स्पीड है ना, अरिथमेटिक मीन पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना, तो वही है। 70 किलोमीटर थी क्या, मतलब ये इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं थी, ये इसकी एवरेज स्पीड है। अच्छा, या तो मैं तुम्हें डिस्टेंस दे दूं कि ये वडोदरा, आनंद, ये अहमदाबाद, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये सपोज 50 किलोमीटर है और ये 60 किलोमीटर है। ये कवर करने में इसको 1 आवर लगा और ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 1 आवर लगा। अब मैं बोलती हूँ एवरेज स्पीड निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 110 किलोमीटर बाय टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं 110 को 2 से डिवाइड करती हूं तो 2 5 जा 10, 5 जा 10, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही? तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या है 55 किलोमीटर पर आवर। हालांकि वो इतनी स्पीड से नहीं चल रहा था, उसकी स्पीड तो कुछ और ही थी, दैट स्पीड तो कुछ और ही थी, इज एक्चुअल स्पीड। यहाँ पे भी इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी वडोदरा से आनंद 60 किलोमीटर पर आवर, पर एवरेज स्पीड क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब जब मैं आगे बात करती हूँ तो मोशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When I talk about uniform motion, so an object is said to be in uniform motion। कब एक मैं ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहूंगी, तब जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से, है ना, ला 50 पे ही हम चलाएंगे, उससे स्पीड पे नहीं चलाएंगे, तो वो 50 पे ही चलता जा रहा है। तो पूरा जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो एक ही स्पीड पे किया, कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर किया, देन दैट पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है पर स्पीड चेंज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पर स्पीड चेंज कर रहा है, पहले 60 थी, फिर 80 किया, फिर 20 किया, फिर ब्रेक मारा क्योंकि बम्पर आया, सिटी में ट्रैफिक हो गई तो 30 पे ही चल रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पर स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे ही चलते वक्त स्पीड कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या कि स्ट्रेट लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ अ सेम स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड कि वही बनाए रखा है, ठीक है, न कम न ज्यादा, that is known as uniform motion. Now
इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड. कैसे? तो कि अगर ये वडोदरा से अहमदाबाद गया 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. एक ही स्पीड 50 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालोगे, अरे एक ही स्पीड है, क्या एवरेज स्पीड निकालोगे? सेम ही रहेगा, है ना. अब अगर पहले 20 था, फिर 40 किया, फिर 50 किया, फिर 80 किया, फिर वापस 60 किया, 30 किया, स्पीड चेंज हो रही है. तो एवरेज स्पीड अलग होगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड अलग थी, कांस्टेंट स्पीड है क्या? नहीं, स्पीड अलग अलग है. ठीक है. स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग. स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी. तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, पहले 60 थी, फिर 80 हो गई, स्पीड चेंज हुई. अच्छा हुई. तो हमने जब एवरेज स्पीड निकाला तो क्या था? 70 किलोमीटर पर आवर. पर उसने उस स्पीड पे तो कभी गाड़ी चलाई नहीं, मतलब ये एक्चुअल स्पीड नहीं. एक्चुअल स्पीड तो ये थी और ये थी, मतलब एक्चुअल स्पीड इज अलग फ्रॉम एवरेज स्पीड. बात समझ आ रही? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे स्पीड चेंज कर करके मूव हो रहा है, तब एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल स्पीड. बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तब उसका एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम हो जाएगा. अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं, वो पता लगाने के लिए यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट वीडियो में वी वुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, उसका यूनिट कन्वर्जन कैसा होगा, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में.